Namaskar, I'm Ashok Vyas, and if I say I'm very excited today, would not be a new thing because life offers so much excitement at every step, at every moment. But one common theme, generation after generation, relates to our love for learning. But is that love increasing with the onslaught of technology and especially the arrival of artificial intelligence? Are we under pressure to learn at a fast pace than what we would normally like to because of the interference of technology and the changing world? The world is changing on many levels. We will try to see how we are coping up in terms of our ability to learn. I have the pleasure of welcoming someone who shifted from various uh, branches of knowledge successfully. I have the pleasure of welcoming someone who I would call an excellent poet or an author or someone who is serving in the corporate world in the field of law and a thought leader. Vinod Vittalji joins me from Bhubaneswar. Namaste, Vinodji. Namaste. Such a pleasure to have you, sir. Thank you. So let us begin. Uh, Generally speaking, different students you must have observed as you were growing up have different style of learning. कुछ लोग सुनकर उनको याद रह जाता है, समझ जाते हैं। कुछ लोग देखकर समझते हैं और कुछ लोग ऐसा लगता है कि समझते नहीं है। So what is it that you consider plays an important role in our ability to learn new things as human beings? अशोक जी, मुझे जो लगता है कि मनुष्य के पास लर्निंग की सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी है। आप ये देखिए कि जितनी भी दूसरी स्पीसीज धरती पे हमारे साथ आई, उनके प्रेजेंट स्टेटस को और मनुष्य के प्रेजेंट स्टेटस को देखें तो लर्निंग की एबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा मनुष्य में रही है। बट व्हाट हैपेंस एक्चुअली दैट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, internal merit matters. When we talk about the learning ability and learning attitude of the humans, then again the internal merit survives there. All humans are not having the equal ability of learning or equal capacity of learning or grasping, because that's why we see the entire world is still till date working on the pattern of meritocracy. So, from where merit comes? Merit comes not with the brain or capability, the inherent mechanism we have been given by the destiny. That is not difference. The distance or difference is the how we evolve ourselves. It may be the medium, it may be the place, it may be the system, it may be the pedagogy we have. So that all impact our learning. तो अब अगर अपन इस तरह से बात करें कि अगर मनुष्य में, सारे मनुष्यों में सीखने की प्रवृत्ति और क्षमता बराबर है, तब फिर वो फर्क जो है वो कहाँ से आता है? फर्क आता है उन तमाम चीजों से। जैसे आप दो बीज लीजिए, एक बीज को एक अच्छे एनवायरनमेंट में डालिए और एक बीज को जंगल में कहीं फेंकिए, दोनों की ग्रोथ में फर्क होगा। तो सीखने की प्रक्रिया जो है वो मनुष्य के साथ इस तरह से रही है हमेशा से कि मनुष्य को, मेरा ये मानना है कि आप सिखाने के टूल से जितना दूर रखते हो उतना वो ज्यादा परफेक्ट सीखता है। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, चलना कोई बड़ा फर्क नहीं है किसी भी आदमी के चलने में। दो आदमी, 50 आदमी, 5 लाख आदमी, 20 करोड़, 50 मिलियन लोगों के चलने में कोई फर्क नहीं है। फर्क कहां पर आता है? जहां पर एक खास एनवायरनमेंट, एक खास पेडागोजी वो काम करती है। और इसीलिए आप देखो कि ग्लोबली जितने भी एजुकेशन के एक्सपेरिमेंट हुए हैं वो तमाम इस पे काम कर रहे हैं कि अगर लर्न करने की कैपेसिटी अगर बराबर है तो ये फर्क नहीं आ सकता कि एक आदमी है वो किसी एक परीक्षा में 100 में से 95 नंबर लेके आता है, एक 40 नंबर लेके आता है। तो मुझे ये लगता है कि जो बेसिक चीजें जितनी भी है,
एक लेवल तक, एक स्तर तक हम सब बराबर सीखते हैं, और उसके बाद में एक एनवायरमेंट जिसे अपन कह लेंगे, एक माध्यम कह लेंगे, टूल कह लेंगे, वो जिसके पास जैसा है, उसके सीखने की स्पीड दूसरे की तुलना में कम या ज्यादा हो सकती है। तो विनोद जी, मैं आपसे वहां पे सहमत नहीं हूँ कि सबके पास बराबर क्षमता है सीखने की। मुझे लगता है जी। क्षमता में कुछ मूलभूत अंतर होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं एकदम तीर की तरह विषय के सार पर, बिंदु पर पहुंच जाते हैं। कई लोग पहुंच नहीं पाते। पर दूसरी बात जो मुझे लगता है कॉमन ली हम लर्निंग की कैपेसिटी के साथ जोड़कर देख सकते हैं, वो है पावर ऑफ कंसंट्रेशन। तो उसको लेके मैं पुल जो देख रहा हूँ उस समय में जब इंटरनेट इतना अधिक हमारे जीवन को गवर्न नहीं कर रहा था, और हम्म। अब दूसरा इंटरनेट के साथ साथ ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका जो एक नया असर हमारे जीवन में आ रहा है। तो मैं अगर सिर्फ कंसंट्रेशन की दृष्टि से बात करूं विनोद जी, तो आप को क्या लगता है ये अ, हमारी अधीरता बढ़ रही है, उसके कारण कंसंट्रेशन कम हो रही है, या हाउ डू यू सी दिस प्लेइंग आउट? और स्पेशली अलाउ मी टू ऐड, अगर आप अपने बचपन को याद करें और आज के बच्चों के साथ जितने सारे टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स उपलब्ध हैं, तो कई चीजों के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। अब उनको करने की जरूरत नहीं है। तो हाउ जी। इट इज गोइंग टू प्ले फॉर देयर लर्निंग स्किल्स? अ, इसमें मुझे दो तीन चीजें लगती है, उसी से मैं मेरे जवाब को विकसित करने की कोशिश करूंगा। एक तो ये कि हमें ये फर्क समझना पड़ेगा कि एक चीज है इंफॉर्मेशन, सूचना, दूसरा है नॉलेज, ज्ञान, और तीसरा है विजडम, रेशनल या विवेक। एक और चीज मैं कहूंगा कि हर टेक्नोलॉजी जो है, उसके आविष्कृत होने की शुरुआत कम से कम 50 साल पहले होती है। मतलब लोगों को ये बड़ा विस्मयकारी वाक्य लगेगा, लेकिन मैं बहुत दावे के साथ ये कह सकता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने की शुरुआत कम से कम 50 साल पहले हो गई थी। ठीक है, इसको इस रूप में आने में, विकसित होने में समय लगा। ये एक तथ्य है। दूसरी चीज ये देखिए कि अल्टीमेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कोई ह्यूमन को सब्स्टिट्यूट करने वाली स्पीसी आज तक नहीं बनाई है। दूसरी चीज, अब आते हैं तीसरी चीज की, जो आप मुझे कह रहे हैं कि मैं मेरे बचपन की तुलना अगर आज के बच्चे के बचपन से करता हूं तो उनकी स्पीड में और मेरी स्पीड में क्या फर्क है। निसंदेह अशोक जी, इंफॉर्मेशन के लेवल पे आज के बच्चे के पास जो जानकारियां हैं, वो पुरानी पीढ़ी, मेरी पीढ़ी के बच्चों के पास में नहीं थी। अब दूसरा आता है नॉलेज पे भी। ज्ञान भी नई पीढ़ी के पास बहुत ज्यादा है। ज्ञान को प्राप्त करने की जो स्पीड है, वो भी नई पीढ़ी के पास ज्यादा है। क्योंकि वही जो आप कह रहे हैं कि मेरे बचपन में मुझे अगर रामायण या महाभारत जब मैं कॉमिक बुक के जरिए पढ़ता था, तो मुझे हफ्ते भर का, 15 दिन का, 1 महीने का इंतजार करना पड़ता था कि अमर चित्त कथा जो है वो भीष्म के बाद में कुंती के ऊपर अपना अंक कब निकालेगा। अब ऐसा नहीं है। अब एक बच्चा अगर कुछ नॉलेज गेन करना चाहता है, तो उसके पास में इंटरनेट का एक ऐसा मेगा हाईवे है जो कोई भी चीज उसको केवल क्लिक के ऊपर प्रोवाइड करा सकता है। तो ज्ञान भी जो है उसकी भी स्पीड बढ़ी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो और टूल्स। जी, ये दोनों जो शब्द हैं, जी। इंफॉर्मेशन और नॉलेज, इसको जी। थोड़ा और स्पष्ट आपके साथ करने की दृष्टि से, यदि मैं जी। ऐसा कहूं कि आपकी नॉलेज आपको हेल्प करती है कि आप इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करें, या कौन सी इंफॉर्मेशन गैदर करें जो आपके लिए रेलेवेंट हो, तो ये नॉलेज जो है ये ज्यादा करके इंटरनल स्पेस के साथ संबंध रखती है, या यूं कहें कि इंट्यूटिव वे में भी नॉलेज होती है। और जो ज्यादा करके हम पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं उसमें हम
इंफॉर्मेशन की तरफ ही अधिक बढ़ रहे होते हैं स्कूली जी जो पाठ्यक्रम में। तो जी नॉलेज कहाँ से आती है? आती है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन जो है वो बेसिकली सूचनाएं हैं। वो केवल आप में एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करती है कि साहब दुनिया में ये चीजें चल रही है। अब जब बहुत सारी सूचनाओं का आप पीछा करोगे और उनको गैदर करना शुरू करोगे, तब लंबे समय बाद में उनको जिस तरीके से आप कंसीव करोगे, जिस तरीके से एनालाइज करोगे, जिस तरीके से अपनी मेंटल रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑर्गेनाइज करोगे, तो जो ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन होंगी वे बाद में नॉलेज में कन्वर्ट हो जाएंगी। एक उदाहरण देता हूं, जैसे कि अगर आपको आज के जियो पॉलिटिकल ऑर्डर में यूक्रेन और रशिया के टेंशन को समझना है, तो कुछ सूचनाएं आपको समझनी पड़ेगी कि 1910 के बाद में किस तरह से इन दोनों मुल्कों में क्या फर्क आया, किस तरीके से 1991 में आते आते रूस जो है वो अचानक 17 देशों में बिखर जाता है। 1991 के बाद में वो जो 16 नए टुकड़े आ गए रूस के साथ में, उनके अपने कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, सर्वाइवल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, वो सारे अपन समझेंगे। लेकिन इस सब के लिए हमको पहले चाहिए कि सूचनाएं। और जब सूचनाओं को हम ऑर्गेनाइज तरीके से कंसीव करेंगे और कंसीव करने के बाद में फिर जब ऑर्गेनाइज करेंगे, तो हमारे पास में एक नॉलेज आएगा। लेकिन मैं जो बात तीसरा शब्द कह रहा था वो ये है कि विजडम जो है वो इससे बड़ी चीज है। और विजडम एक ऐसी चीज है दैट इज अबव द इंटेलिजेंस, कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज से यू कैन मेक एनी वेपन, आप शस्त्र बना लोगे। लेकिन विजडम जो है वो एक ऐसा एक ऐसा शस्त्र आपके पास होगा, उस शस्त्र के भी ऊपर, कि उसको उपयोग में लें या ना लें। तो विजडम जो है वो मनुष्य को आखिर में विजडम ही बचाएगी। और आज जिस स्थिति में मनुष्य आया है उस स्थिति में लाने में भी मनुष्य की विजडम का बड़ा योगदान रहा। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोर में बात करते हैं कि देखो साहब, एक मिनी सेकंड्स में हमारे पास में इतनी खरब सूचनाएं आ सकती है। ठीक है, नॉलेज के लेवल पे आप मुझे कह देंगे कि अगर मैं ईस्ट तिमोर को जानना चाहता हूं या साउथ ईस्ट एशिया को जानना चाहता हूं, तो मेरे पास में एक फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन और फ्लड ऑफ नॉलेज आ जाएगा। क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो आपको नॉलेज नहीं दे रही है सीधा, नॉलेज उसके पास में है और वो उसी को अपने मैकेनिज्म से नॉलेज में कन्वर्ट करके मुझे दे रही है। और वो जो कन्वर्जन करके जो डिलीवर करता है वो इतना इन्फ्लुएंशियल है कि वो विजडम मेरे पीछे रह जाएगी। तो मुझे ये लगता है कि यहीं पे आके कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस का, जिसमें आदमी के पास अगर विजडम है तो वो इसको ठीक तरीके से हैंडल कर पाएगा। तो विजडम की बात को लेते हुए, अगर हम भारत में जो संयुक्त परिवार प्रणाली पहले रहती थी, या जी जिस तरह से संबंधों में एक बॉन्डिंग का जो स्वरूप रहता था, जी अ, कुल मिला के जब हम सीखने की बात करते हैं तो कुछ बातें अपने आप सीखने में आ जाती थी कि हमें दूसरे मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार करना है, या आत्मीयता जो है वो एक आवश्यक तत्व है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है। अब आपको क्या लगता है, ये कहना हमारे पूर्वाग्रह के ग्रस्त होने का संकेत रहता है, कि हमें लगता है अभी नई पीढ़ी में उस तरह से जो आत्मीयता की सौरभ है वो कंप्यूटर के साथ उनके लगाव के कारण कम हो रही है? क्योंकि उसके पास अपने पिता माता भाई बहन के पास, मित्रों के पास देखने का, उनको सुनने का समय ही नहीं है। वो ये फोन में लगे, और मैं पुनः ये दोहरा रहा हूँ, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते उनके पास में इस तरह के कैरेक्टर भी आ जाते हैं जो उनको कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो गाइड करेगा। तो वो बात भी उससे कर रहा होगा, क्योंकि वो तो उससे असहमत होएगा नहीं। जो अ, तो बहरहाल, आप क्या समझते हैं, मैं- अब लर्निंग टू हाँ कनेक्ट विद हाँ, पीपल, इज इट डिफिकल्ट? मुझे ये लगता है कि एक टेक्नोलॉजी के तौर पे जो ये दौर है हमारा, जिसमें एक्सेशन ऑफ इंटरनेट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है,
ये बहुत बड़े मास सोशल डिस्ट्रक्शन के तौर पे मैं देख रहा हूं। इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। मैं आपको टेक्नोलॉजी के दो करेक्टर बताता हूँ। एक पहला करेक्टर जो मैं डिकोड कर पाया वो ये है कि हर नई टेक्नोलॉजी जो है वो पुरानी टेक्नोलॉजी को खा जाती है। बहुत तेजी से एग्जांपल दूंगा। आपके और मेरे बचपन में हमने ग्रामोफोन देखे थे जो जा रहे थे। उसके बाद में कैसेट्स आ गए। उसके बाद में वीसीआर और वीसीडी का दौर आया कि एक वीडियो कैसेट्स होती थी, हम फिल्में देखा करते थे। उसके बाद में टेलीविजन आ गया। टेलीविजन के साथ में मल्टी चैनल्स आ गए। मल्टी चैनल्स के बाद में मल्टीप्लेक्सेस आ गए। मल्टीप्लेक्स के बाद में अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए। और आप देखोगे तो इस पूरी जर्नी ने अपने से पूर्ववर्ती टेक्नोलॉजी को खत्म किया। बहुत मैं क्रूरता के साथ। मैं टेम्पटेशन मेरा है, थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी। जो जी। ये स्मार्टफोन है, ये तो बहुत सारी चीजों को खा गया। ट्रांजिस्टर को खा गया, घड़ी को खा गया, फोन को खा गया। तो आप बिल्कुल। सही कह रहे हैं जी। अब इसी चरित्र को मैं दूसरी आंख से देखता हूं और वो ये देख पाता हूं कि जिस तरह से एक टेक्नोलॉजी अपने से पहले वाली टेक्नोलॉजी को खा जाती है, उसी तरह से एक टेक्नोलॉजी अपने बाद आने वाली नवजात टेक्नोलॉजी के लिए एक स्पेस बनाती है। अब आप ये देखें कि ग्रामोफोन जब जा रहा था और कैसेट जब आई, तो कैसेट आई तो उसने म्यूजिक को और म्यूजिक की इंडस्ट्री को अपेक्षाकृत सस्ते संस्करण के साथ में कम पैसों में लोगों के घरों में पहुंचाना शुरू किया। उसके बाद में वीसीआर वीसीडी आए, उन्होंने और सस्ता कर दिया। उसके बाद में टेलीविजन आया तो पर्दे घर के ऊपर हम सिनेमा देखने लग गए। उसके बाद में मल्टी चैनल्स आ गए। उसके बाद में मल्टीप्लेक्सेस आकर अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म है। यानी आपके मोबाइल का स्क्रीन जो है वो आपको बॉलीवुड टॉलीवुड या हॉलीवुड की कोई भी फिल्म जो है वो बहुत कम पैसे में दिखा सकता है। 99 रुपीज में आप हिंदुस्तान में एक महीना तक नेटफ्लिक्स देख सकते हैं। ठीक है। तो हर टेक्नोलॉजी ने अपने बाद की टेक्नोलॉजी के लिए एक स्पेस तैयार किया। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है उसने एआई को क्रिएट किया। और एआई के करेक्टर पे अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत बड़ी दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि ये मनुष्य के इतिहास की पहली टेक्नोलॉजी है जो मनुष्य के कंट्रोल में नहीं है। सोचिए आप कि अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे स्टॉक मार्केट को डील करने के लिए आपको एक टूल बनाना है, एक एआई बेस्ड टूल बनाना है कि इंडिया के जो टॉप 50 स्टॉक्स है उसको वो मॉनिटर करेगी और मुझे सजेस्ट करेगी। आपको ये टूल बनाना है कि मैं मोटा आदमी हूं और मुझे अगर मेरा वजन कम करना है और एक एआई रोबोट आपने मेरी जिंदगी में शामिल कर दिया है जिसको आपने मेरी इस घड़ी से जोड़ दिया है, तो वो मेरी डाइट वगैरह सब बता देगा कि आप स्ट्रेस में हो तो आप शुगर मत खाइए, आपने आज वॉक नहीं किया, आज आपके 5000 स्टेप्स नहीं हुए। तो एआई जो है सारी चीज मुझे सजेस्ट करेगी। उसको एक बार बनाकर छोड़ देने भर की जरूरत है। लेकिन इससे पहले आप देखिए कि जितनी भी टेक्नोलॉजी आई वो अपने कैरेक्टर में एक्टिव टेक्नोलॉजी थी, यानी उसका रिमोट आदमी के पास था। हम जब पढ़ते थे तो जगजीत सिंह की कैसेट सुन रहे थे, लेकिन पढ़ना है तो हमने उस कैसेट को बंद कर दिया। तो वो टेक्नोलॉजी पूरी विश्राम ले लेती थी, वो आपको सुना नहीं सकती थी। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रही है? आप ठेला लेकर अगर एक मॉल में चले गए और आपने 10 चीजें खरीदी है, तो आपकी उन 10 बाइंग से एआई जो है वो आपको डिकोड करेगी, आपकी चॉइस को डिकोड करेगी, आपकी मेंटेलिटी को डिकोड करेगी, आपकी सोशल फैब्रिक को डिकोड करेगी। और जब आप वापस घर पे आओगे और अगर आप यूट्यूब के ऊपर कुछ देखने बैठे हो तो वो उसी को विस्तार देगी। पहले की किसी टेक्नोलॉजी में ये चीज नहीं थी। तो एआई जो है ये मेरी नजर में सबसे खतरनाक डिस्ट्रक्शन सभ्यता के लिए इस मायने में है क्योंकि इसका रिमोट आदमी के हाथ में नहीं है और आने वाले दिनों में नहीं रहेगा। वो इतना। जब अब मैं चूंकि हम अब अगले चरण की तरफ बात के बढ़ रहे हैं, मैं आपकी इस बात को लेके आपकी अनुमति जी। से, जो जी। आपने जी। विजडम कहा था इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बाद में, तो मुझे लगता है अभी हमें विजडम जो है वही बचा सकती है। हमें का मतलब मनुष्य जाति को, जो बिल्कुल। मानवीय गुणों के दृष्टि से हम बात करें तो
तो जी। विजडम का प्रयोग करने वाले लीडर्स आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? और ये विषय वैसे एकदम अलग हो जाता है, अभी जो जियो पॉलिटिकल एक स्टेट ऑफ फ्लक्स जैसा है, डिसरप्शन हो रहा है, और उसमें अमेरिका के जो राष्ट्रपति महोदय हैं, वो एक नए ढंग से अमेरिका को महान बनाने की दृष्टि से जो उनको ठीक लग रहा है, वो पहले वालों से अलग रहा है, हो रहा है। तो उसके कारण भी कई देश जो हैं वो थोड़ा सा डावाडोल हो गए। अभी ऐसा ऐसा प्रतीत होता है, या शायद सही होगा, कि अमेरिका सचमुच में एक बड़ा महत्वपूर्ण किरदार एक राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व में निभा रहा है। तो बहुत सारे देश उसके साथ इस तरह जुड़े हुए हैं जो अभी तक पता नहीं लग रहा था, तो अभी हिलने लगा है तो पता लग रहा है। तो इस बात को थोड़ा सा टच करें आप, लेकिन जो विजडम वाली बात है उस तरफ बढ़ें आप। हाँ, तो एआई की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि ये एक ऐसा मास सोशल और इंटेंस डिस्ट्रक्शन करती है कि वो आपको विजडम से दूर ले जाती है। ये इस टेक्नोलॉजी की ताकत है। कैसे? मान लीजिए एक आदमी जो है, एक बच्चा है 16 साल का, और हमारे ज़माने में कुछ पत्रिकाएं होती थी जो हम पोर्नोग्राफी की बहुत प्रारंभिक अवस्था के तौर पे देखा जा सकता है जिन्हें हम वो मैगजीन्स पढ़ते थे। आज के बच्चे डेबोनियर की का बात, नाम याद आ जाएगा आपको, निमोनिया, चैसिटी, डेबोनियर। फैंटेसी हाँ, वन हाउसिल एडिटर हुआ करते थे जी, उनके। दफा 302, करमचंद, इस तरह की हिंदी में भी पत्रिकाएं आती थी। पल्प लिटरेचर बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे बिकती थी। अच्छी किताबों के नीचे रख के बेचा करते थे, ठीक है। जी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करती है कि वो इस बच्चे से विजडम कैसे छीनती है। एक तो ये कि इसने अपना प्लेटफॉर्म इतना माइल्ड कर दिया है कि मैं मोबाइल लेके बैठा हूं, और मोबाइल पे मैं गाना, मैं जो चला रहा हूं वो हो सकता है कोई धार्मिक प्रवचन है, हो सकता है कोई भजन है, हो सकता है हनुमान चालीसा है, वो चल रही है मेरे मोबाइल पे। तो मेरे पिता या चाचा या मम्मी अगर मेरे आसपास है तो उनको लगेगा बच्चा ठीक कर रहा है, सुबह का टाइम है और ये मधुर भजन सुन रहा है। लेकिन पैरेलली वो उसको हाफ स्क्रीन करके, मोबाइल में ही हाफ स्क्रीन में वो कुछ टेक्स्ट पढ़ रहा है जो पोर्नो टेक्स्ट है। एआई क्या कर रही है आज के बच्चों के साथ में कि वो पूरी भीषणता से एक बच्चे की फैंटेसी को टेक्नोलॉजी का तड़का लगाकर इतना रेस्ट्रिक्ट कर रही है कि वो ये सोचता है कि मुझे ऐसी स्त्री के बारे में कुछ सोचना है, मुझे इस स्त्री को नंगा देखना है, मुझे इस स्त्री के इस अंग को इतनी नजदीक से देखना है। तो वो एआई जो है वो पूरा का पूरा उसकी चॉइस के हिसाब से एक वीडियो बना देगा। चॉइस के हिसाब से वो एक ऐसी कथा बनाएगा जो कथा जो है वो उसको डिस्ट्रैक्ट करेगी। तो आप ये देखो कि एआई जो है वो आपकी विजडम को इस मायने में खत्म करती है कि पहले के तमाम माध्यमों में जितने भी मीडियम आए उनको आप रिमोट के साथ बंद कर सकते थे, इसको नहीं कर सकते। अच्छा, अगर इसमें क्या है 10 कि जी, वैसे तो मॉनिटरिंग भी पॉसिबल नहीं है पेरेंट्स के लिए, अगर नहीं कोई नहीं, बहुत टैक्स हैवी हो। जी। हाँ नहीं है, नहीं है, आप नहीं कर सकते। और अब जब वो बच्चा कल वापस बैठेगा तो वो वापस उसी की कंटिन्यूटी में आगे लेके जाएगा। मतलब जो एआई का जो पॉन कंटेंट है वो इतना शार्प है कि वो अगले दिन जो है वो आपको उसी में आगे ले जाएगा। और अगर उसको लगा कि नहीं आप थोड़ा अवॉइड कर रहे हो उसको, तो वो उसको इतनी तेजी से, इतनी चालाकी से आपका साइको एनालिसिस करके अगले स्टेज पे लेके जाएगा। तो वो ये चाहेगा कि नाउ यू शुड नॉट गेट रिड ऑफ मी, आप मेरे से बच ही नहीं सकते। तो ये जो भीषणता है ये बाकी तकनीकों में नहीं थी, एक चीज। दूसरी चीज क्या है कि ये मनुष्य को बहुत अकेला बनाएगी, क्योंकि अगर मनुष्य अकेला नहीं, आप एक कल्पना कीजिए, आप और हम किसी जैसलमेर से भी आप देखिए 150 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की तरफ ऐसी जगह जाके बैठ जाएं जहां पे नेटवर्क नहीं आ रहा है, और हम अगर वहां 6 महीने रहें, तो ये एआई हमारा क्या बिगाड़ लेगा? कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन एआई को ये पता है कि धीरे 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 मेरी रीच किस तरह से बढ़ेगी और मैं किस तरह से डिस्ट्रैक्ट कर सकता हूं। तो उसने क्या किया है कि
अगर मुझे हवाई जहाज का टिकट बुक करना है, अगर मुझे शाम के लिए सिनेमा का टिकट बुक करना है, अगर मुझे मेरे वजन के हिसाब से और मेरे रूप रंग के हिसाब से कपड़े के कलर पसंद करना है, तो एआई मेरी सारी मदद कर देती है कि साहब आपके वेट के, आपकी एथनिसिटी के लोगों के लिए ये नए कलर कॉम्बिनेशंस इन इन कंपनीज में है और इतनी छूट के साथ मिलेंगे। तो एआई जो है वो आपको इसलिए विजडम की तरफ नहीं लाने देगा, क्योंकि एआई को प्रोपेगेट करने वाली जो फोर्स है वो फोर्स है मार्केट की, और मार्केट कोई भी काम फिलॉन्थ्रॉपी में नहीं करता है। मार्केट कोई भी काम फिलॉन्थ्रॉपी में नहीं करेगा। मार्केट हर काम, हर टेक्नोलॉजी का यूज वो हमेशा इस पर करेगा कि वो मेरे लिए स्पेस बने, मेरा मुनाफा का स्पेस जो है वो बनना चाहिए। तो जब मार्केट उस तरह से काम करेगा तो क्या होगा कि एआई जो है वो धीरे धीरे, जिसको मैं सोच रहा था कि ये मेरा हेल्पर है या हेल्पिंग हैंड है, उससे वो धीरे धीरे मेरी चॉइस को डिक्टेट करने लगता है। और आज एआई गवर्न जो हमारी सोसाइटी हो रही है बहुत तेजी के साथ में, उसमें क्या हो रहा है? उसमें यही हो रहा है कि एआई जो है बहुत भीषणता से डिक्टेट कर रही है कि भाई मुझे ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, मेरा लाइफ स्टाइल स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए। अगर मेरे पास में एप्पल का फोन और एप्पल की घड़ी है तो मेरे पास जूते वो एसिक्स के होने चाहिए, पैंट किस कंपनी की होनी चाहिए, शर्ट किसके होने चाहिए, अंडरगारमेंट्स किसके होने चाहिए। तो अब ये डिक्टेशन की स्थिति में तभी आएगा जब वो आपको टोटली डिस्ट्रक्ट कर देता है। और एआई की यही भीषणता जो है वो मनुष्य के लिए सबसे खतरनाक है कि वो आपको विजडम की तरफ जाने से रोकती है हमेशा। वो कभी नहीं चाहेगी कि आप विजडम की तरफ जाओ, वो हमेशा आपको वहीं अटकाए रखेगी कि साहब मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मेरे पास नॉलेज है, दोनों का, आई एम द ओशन ऑफ बोथ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, सो सिट विद मी, आई हैव एवरी सॉल्यूशन फॉर हिम। विनोद जी, समय समापन की तरफ जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है आप क्लाइमेक्स पर ले आए हैं इस चिंतन को, जी जो मुझे लगता था इतना अच्छा आपने आर्टिकुलेट किया है। मैं एक छोटी सी कविता के माध्यम से इसी संदर्भ में आप तक आना चाह रहा हूँ जी और जी। दर्शकों तक। एआई पहले ये शब्द युग्म क्रिएटिविटी बढ़ाता था। ए आई, वो हमारे आईए आई हुआ। ऐसे कहते हैं, पति पत्नी बोलते नहीं थे। ए आई, पहले ये शब्द युग्म क्रिएटिविटी बढ़ाता था, बंदा रोमांटिक पोएम लिखने की प्रेरणा पाता था। अब ए आई शब्द युग्म छल को बढ़ाता है, स्वांग करने को सही ठहराता है, बीज क्या अंकुरित हुए बिना वृक्ष दिखने की तरकीब बताता है। क्या बंदा बात अपनी सृजनशीलता की हत्या होते देख नहीं पाता है। यूं समझिए, बिना दौड़े रेस में ओलंपिक मेडल ले आता है। इस तरह उपलब्धियां बढ़ती जाती हैं, पर एआई से मन का विकास रुक जाता है। और आप जो विजडम की क्या बात बात। कह रहे थे, दो पंक्तियां उसकी तरफ, बचेगा जी बस वो जो अपनी असल प्रगति और दिखावे की प्रगति में फर्क देख पाता है। देखना है अधीरता के फैलते आंगन में अपने भीतर देखने का अभ्यास कौन करता जाता है। क्या जो, बात। जी, बहुत। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। और मुझे मुझे अगर समय हो तो मैं 15 सेकंड अपनी बात बहुत तेजी से बिल्कुल, कहूंगा। बिल्कुल। इस बात पर भी हम कभी बात करेंगे कि एआई के दौर में विजडम की जरूरत है और मनुष्य थोड़ा बहुत महसूस कर रहा है। इसीलिए आप देखो कि दुनिया में एक रिवर्स गेयर सभ्यता में चल रहा है कि हम सब लोग आध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, हम सब सब लोग मेडिटेशन की तरफ जा रहे हैं, हम सब लोग किसी एक इंटरनल सॉलिटेयर की तरफ जा रहे हैं जहां हम खुद के साथ बैठ सके और बात कर सके। बहुत सही बात आपने कही है। तो बात यह है कि सीखना नए आयामों के साथ में हमारे लिए आवश्यक हो गया है। और इसके लिए हम कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगमन को भी धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि हम हर बार सकारात्मक दृष्टि लेके आगे बढ़ते हैं। तो विनोद जी, आपका आभार है। हमारे दर्शकों को बहुत प्यार के साथ नमस्कार है। धन्यवाद।